Okay, go. नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। Good job, Ariana. Okay. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ભરતાનંદજી આપણે પહેલા પદથી શરૂ કરીશું. હા હા. તો ભરતભાઈ. ભરતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, અનમ્યુટ હતો. દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે મહાવીર જયંતિ નિમિત્તે આ એક મહાવીર સ્વામી ઉપર લખાયેલું સ્તવન છે. શાંતિલાલ શાહે લખ્યું છે. આપણા ભરતભાઈ શાહ વાયોલિન વગાડે છે, એમના પિતાશ્રી. ખૂબ જ ફેમસ છે આ સ્તવન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિષ ભરીને વિષધર સૂતો ચંડ કોશિયા નામી. વિષ ભરીને વિષધર સૂતો ચંડ કોશિયા નામી. મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી. મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી. જાશોમાં પ્રભુ પંથ વિકટ છે, ઝેર ભર્યો એક નાગ નિકટ છે. જાસોનમાં પ્રભુ પંથ વિકટ છે, ઝેર ભર્યો એક નાગ નિકટ છે. જાશોમાં પ્રભુ પંથ વિકટ છે, ઝેર ભર્યો એક નાગ નિકટ છે. જાસોમાં પ્રભુ પંથ વિકટ છે, ઝેર ભર્યો એક નાગ નિકટ છે. હાથ જોડીને વિનવે વીરને લોક બધા ભય પામી. હાથ જોડીને વિનયવે વીરને લોક બધા ભય પામી. મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી. મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી.
આવી ગંધ જ્યાં માનવ કેરી ડંખ દીધો ત્યાં થઈને વેરી આવી ગંધ જ્યાં માનવ કેરી ડંખ દીધો ત્યાં થઈને વેરી આવી ગંધ જ્યાં માનવ કેરી ડંખ દીધો ત્યાં થઈને વેરી આવી ગંધ જ્યાં માનવ કેરી ડંખ દીધો ત્યાં થઈને વેરી હિંસા અને અહિંસા વચ્ચે લડાઈ ભીષણ ચાલી હિંસા અને અહિંસા વચ્ચે લડાઈ ભીષણ ચાલી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી દૂધ વયું જ્યાં પ્રભુને ચરણે ચંડ કોશિયો આવ્યો શરણે દૂધ વયું જ્યાં પ્રભુને ચરણે ચંડ કોશિયો આવ્યો શરણે દૂધ વયું જ્યાં પ્રભુને ચરણે ચંડ કોશિયો આવ્યો શરણે દૂધ વયું જ્યાં પ્રભુને ચરણે ચંડ કોશિયો આવ્યો શરણે કંઈક સમજ તું કંઈક સમજ એમ કહે કરુણાણી કંઈક સમજ તું એમ કહે કરુણા આણી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી વેરથી વેર શમે નહીં જગમાં પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં વેરથી વેર સમે નહીં જગમાં પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં વેરથી વેર શમે નહીં જગમાં પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં વેરથી વેર સમે નહીં જગમાં પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં પ્રેમ ધર્મનો પરિચય પામી નાગ રહ્યો શિર નામી પ્રેમ ધર્મનો પરિચય પામી નાગ રહ્યો શિર નામી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી વિષ ભરીને વિષધર સૂતો ચંડ કોશિયા નામી વિષ ભરીને વિષધર સૂતો ચંડ કોશિયા નામી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી મહાભયંકર એ માર્ગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી વિચરે મહાવીર સ્વામી વિચરે મહાવીર સ્વામી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ આપણો જે આજનો વિષય છે हिंदी हिंदी हिंदी
हाँ, आज जो हमारा विषय है मान, स्वाभिमान, मिथ्याभिमान, गर्व और गारवता, इसके संबंध में ये जहर घोलने वाली चीज है जो हमारे जीवन में हम दूसरों को देते रहते हैं, और दादा के विज्ञान से, समझ से हम कैसे इसमें से अच्छी तरह से उभर आए। चाहे ये डिस्चार्ज परिणाम है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका समाधान, इसका निराकरण करने की जरूरत है, जो बड़े अच्छे से दादा भगवान ने अपने सत्संग में बताया है। और इसके संबंध में किसी को जो कोई प्रश्न हो वो जरूर से पूछे। जय सच्चिदानंद। जय सत्यनारायण महात्मा। अभी क्वेश्चन रहेगा, पर एक बिफोर क्वेश्चन देयर इज अ रिक्वेस्ट कि ये स्तवन का एसेंस क्या था वो कोई बता सकते हैं? भरतानंद जी, एक मिनट, अनम्यूट 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 अनम्यूट, 1 मिनट। अनम्यूट किया मैंने। ओके, नो ही स्टिल म्यूटेड। हाँ, नाउ या ओके, હવે થઈ ગયું. હા, મને પ્રશ્ન રિપીટ કરજો. ये जो स्तवन था उसका हाँ, हाँ. आप मतलब बताएंगे? नहीं, एसेंस मांगता है, जस्ट जिस। एसेंस। अच्छा अच्छा, ये तो आज महावीर जयंती है ना, ये भगवान, ये जो पर्युषण पर्व में आज के दिन भगवान महावीर का जन्म दिवस ऐसा मान के ऐसा उनका सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसलिए भरत भाई ये पद लेके आए, भगवान महावीर का ये पद है। तो भगवान महावीर जो ऐसे विहार कर रहे थे, तो अनार्य प्रदेश में गए थे अपना कर्म खपाने के लिए। तो वहां ये चंड कौशल नाग था। तो चंड कौशल नाग सबको, कोई मनुष्य उधर जा नहीं सकता था, ऐसा था। और उनका प्रभाव बहुत भारी था, उनका जहरीला भी बहुत था। तो भगवान ने देखा कि भाई कर्म खपाने के लिए मुझे अनार्य देश में जाना पड़ेगा। तो फिर उधर से जा रहे थे, तो सब दूसरे जो बाहर जो लोग हैं वो सब उनको विनती करते कि आप उधर मत जाना। मगर भगवान तो अपने उदय कर्म के अधीन चलते रहते, उनको भय ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भगवान जाते हैं, तो भगवान जैसे जंगल में गए तो चंद कौशल को पता चला, तो वो आया और भगवान को पांव में डंक मारा। तो भगवान के तीर्थन, भगवान के शरीर के पुद्गल के एक परमाणु ये वर्ल्ड के उत्तम में उत्तम परमाणु होते हैं। तो उनका जो ब्लड है ना वो भी रेड नहीं मगर व्हाइटिश होता है। तो इसलिए वो लिखा कि डंक मारा तो क्या हुआ कि दूध निकला। और भगवान को तो सब पीछे का सब दिखाई दिया। तो भगवान ने बताया कि चंद कौशिक तू बूझ कि अभी तो तू शांत हो, अभी तो तू शांत हो जा। तो फिर चंद कौशिक को भी पता चलता है, अरे ये तो मैं वैर भाव से वैसा ये कर रहा हूँ। तो उनको भी रियलाइजेशन होता है। तो इसके ऊपर ये पद लिखा है। वेरी गुड। तो ये जो अच्छा वो बजाते हैं ना, गाते हैं कविराज के पद में, कविराज का जो जब पद गाते हैं ना उधर बॉम्बे में, तब ये भरत भाई गाते थे, वो बजाते थे इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन। उनके फादर ने लिखा है। वायलिन। वायलिन 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 उनके फादर ने लिखा है। तो वो ये दो निमित्त सभी ले लिया कि भगवान महावीर का जन्म दिवस दिन है, महावीर जयंती बोलते। और दादा भगवान की बात बताओ कि जब भी महावीर जयंती होती थी तो यहाँ बड़ौदा में तो हमें किसी को पता भी नहीं होता था कि ये पर्युषण चल रहा है कि आज महावीर जयंती है, क्योंकि सब नॉन जैन थे। तो दादा एक दिन पहले बताते थे कल महावीर जयंती है और कल बड़ा सामायिक करेंगे प्रतिक्रमण। तो फिर दादाजी आते थे तो 50 फीट पूरा एक सामायिक प्रतिक्रमण दादाजी करवाते।
कितने सालों तक ये चलता रहा कि बाबू भाई के हॉल में आते थे और सब महात्मा बैठ के पूरी साल में जो भी हुआ वो सबकी प्रतिरोध कर लेते थे। और था भी ऐसा कि दादाजी की हाजिरी थी, दादाजी बैठते थे, सब आंख बंद करके और सामायिक के लिए बैठ जाते थे, अपने दोस्तों का प्रतिरोध करते थे। तो दादाजी की प्रेजेंस में सबको दादाजी की विधि से क्या हो, ऐसा एक माहौल खड़ा हो जाता था कि सबको एक के बाद एक सब दोस्त दिखाई देना शुरू हो जाता था। और इतना ही नहीं, कब 1 घंटा पूरा हो गया वो भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है 1 घंटा पूरा हो गया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो कितने महात्माओं तो ऐसे भी थे कि उनको वो चालू 1-2 दिन तक चालू ही रहता था, नॉन स्टॉप 2-3 दिन तक वो चलता ही रहता था प्रतिरोध करने। तो ऐसे ये महावीर जयंती की दादा भगवान की हाजिरी की बात है। मोस्टली दादाजी बड़ौदा में होते थे और इस तरह से बड़ौदा में सब महात्मा कैसे थे कि सब नॉन जैन थे, तो किसी को पता भी नहीं चलता था कि पर्यूषण चल रहा है। अभी तो हमें बहुत एडवांस में पता चल जाए पर्यूषण है, पता भी नहीं चलता था। और ये सबसे बड़ी बात थी कि ये बहुत बड़ा, दादाजी बोलते बहुत बड़ा प्रतिक्रमण सामायिक कर लेने का है। तो दादा की हाजिरी में साल में एक बार इनकी हाजिरी में ऐसा एक सामायिक प्रतिक्रमण कर लेते थे। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते। हाँ, आगे बढ़ते। तो पहला क्वेश्चन का मॉर्निंग सेशन का एक संजय का बाकी रह गया था। संजय अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। दीपक का था। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का ये जो प्रश्न है ना, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन शाम के सेशन में दीपकानंद जी का जो सत्संग था, दोपहर का सेशन, उसमें उन्होंने एक अपना सिद्ध स्तुति का एक सेंटेंस आया कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूँ। तो वो निश्चय निर्णय का तभी मेरे को क्वेश्चन है तो मैंने डाल दिया था, लेकिन तभी टाइम आउट हो गया था, इसके लिए अभी पूछ रही हूँ। अच्छा, ये निश्चय निर्णय दोनों में डिफरेंस क्या है? निश्चय का मतलब क्या है कि डिसाइडेड हो गया। ओके, कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ। ओके, परफेक्ट। और निर्णय मीन्स मैं डिसीजन पे आ गया। ओके। अभी कैसी बात है, जब आपको अनुभव होता है, हाँ, पक्की श्रद्धा बैठती है, बाद में ये निर्णय हो सकता है, बाद में निश्चय हो सकता है। ओके। है तो क्या बोलेंगे मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मगर हम महात्मा लोग क्या बोलेंगे कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। ये कैसी बात है? आप बोलते कि मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर आप ऐसा भी बोलेंगे मैं भगवान महावीर जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। बोलते समय आपको भीतर कुछ खचकाट होगा, ऊपर से आनंद होगा। हाँ, परफेक्ट। हाँ, तो आनंद क्यों होता है? नहीं तो दूसरे लोगों को बोलो कैसा बोले, तुमको डर लगेगा, मैं कैसा बोल सकता हूँ कि मैं भगवान महावीर जैसा शुद्धात्मा हूँ, तुमको भय लगेगा। मगर हम दादा की कृपा से हम हुए हैं, कि दादा भगवान का कितना बड़ा ये आश्चर्य है कि उनकी कृपा से हम हुए भी है, और जो अनुभव है वो अनुभव की वजह से मुक्त मन से आनंद से बोल भी सकते हैं। हम जो है वो बोलते हैं, इसलिए पता है निश्चय और निर्णय। अच्छा, मतलब निश्चय मतलब नक्कीपना हुआ इसमें? निश्चय मीन्स रियल से। ओके, ओके, ओके। निश्चय मीन्स रियल से, मीन्स मैं सही में। ओके, ओके। और
रियल से मैं शुद्ध आत्मा ही बोलते हैं ना क्या, मैं बाय रियल व्यू पॉइंट में शुद्ध आत्मा हूँ। ओके तो मैं निश्चय से शुद्ध आत्मा हूँ, तो मैं निश्चय से शुद्ध आत्मा तो हूँ, मगर अभी निर्णय भी हो गया कि ओके नहीं मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। अच्छा ओके परफेक्ट जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चा अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, ओके जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चान, क्वेश्चन जय सच्चिदानंद भरत भाई। जय सच्चान, जय सच्चान। क्वेश्चन છે આપતવાણી 9 માંથી પેજ નંબર 263 આપતવાણી 9 263 જેએસએસ આપતવાણી એમાં દાદાજી એવું કહે છે પ્રશ્નકર્તાએ પૂછ્યું અને ઈગો ગવાયો તો વેર વાળે નહીં? દાદાશ્રી કે ના કશુંય નહીં, ઈગોનો વાંધો નથી, પણ આ શ્રીમંતોને ઈગો હોતો જ નથી ને, ઈગો હંમેશા ગરીબ અને એકલાને જ હોય છે. એ કેવી રીતે? એ દાદા ભગવાન શું કહેવા માંગે છે કે શ્રીમંતોને ઈગો નથી હોતો અને ગરીબ ન જ હોય છે. હા, એ દાદા શું, દાદાની વાત સમજો, આશય સમજો। दादा ने दो बात बताई, एक ईगो और साथ में बताया अभिमान। अशोक भाई, एक बताया ईगो और दूसरा बताया अभिमान। और क्या बताया कि श्रीमंत को ये जो दूसरे लोग हैं, तो ईगो जो है ना, ईगो ये जो अहंकार जो बोलते हैं मैं हूं, मैं हूं, वो ईगो हो गया। बराबर। और जो दूसरी सारी चीज है, ये मेरी चीज है, ये है, ये मकान है, ये पैसा है, ये है, वो है, वो अभिमान हो गया, ये मेरा है। करेक्ट। सिर्फ अहंकार है, वो ईगो में गया, अहंकार अकेला होता है। और अभिमान में अहंकार सही, अहंकार के साथ ममता आ जाती है। ममता इसका मतलब क्या है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अहंकार और ममता साथ में मिल गए, फिर वो अभिमान में जाता है। बराबर। ख्याल में? तो जो श्रीमंत लोग हैं, अभी जो गरीब लोग हैं, उनको तो ऐसा अभिमान करने जैसा कुछ है ही नहीं। करेक्ट। या एक थोड़ी नीचे ज्यादा पैसा है, इतना बड़ा मकान है, ऐसा अभिमान वो कैसे करेंगे? मगर उनको ईगो होता है, अहंकार होता है। यो करेक्ट। तो ऐसे आमतौर पे सबको क्या होता है? ईगो होता है। फिर ये दूसरे जो ऐसे जो पैसे वाले हो गए, तो फिर उनको धीरे धीरे वो अभिमान आता है कि भाई मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा ये है, मेरा ये है। बराबर। क्लियर होगा? चलो अभी यहाँ रख दिया, तो मैं इसको पढ़ के ही बता दूं। નીચેના લાઈનમાં હવે બીજા લાઈનમાં આવી ગયું ને કે શ્રીમંતોને માન હોય, અભિમાન હોય, માન હોય, અભિમાન હોય, સમાન હોય, પણ ઈગો, પેલું ઈગો એટલે ईगो विथ બધું। तो मैंने बताया ना अभी, क्या अहंकार के साथ ये ममता आई, तो ममता आई तो ममता में सब आ गए ना, वस्तु की ममता और जीव की ममता। बराबर। कि पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन, वो ममता, और वस्तु की भी ममता। तो ईगो विथ ऑल दिस थिंग, उनको सब चाहता है, फिर वो अभिमान वो सब में। तो श्रीमंतों के पास वो अभिमान होता है, मगर छोटा आदमी है, उनके पास क्या है? उनके पास ईगो है। ईगो है कि मैं हूं, दैट्स हाँ, करेक्ट। क्लियर? समझ में आ गया आपको? बीजो एक क्वेश्चन क्लिप में अहंकार बोलते, सिर्फ अहंकार है, उनको अहंकार बोलते। करेक्ट। अहंकार के साथ सब लगा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। मेरा हिंदी गुजराती हिंदी है। अहंकार के साथ सब जुड़ा हुआ है,
तो उनको बोलते हैं अभिमान। बराबर। तो कैसे है कि आपके गांव से कोई यूएस आए आपके घर पे, तो आप क्या करेंगे? कोई सब बताएंगे, देखो ये मकान है मेरा, अभी 2 साल पहले ही लिया, उसके पहले वहां था, वो अभी मेरे पास ही, अभी बेचा नहीं है। फिर बराबर। वहां आगे दूसरा भी एक है। तो वो सब जो बता दो क्या है, तो क्या अपने ईगो का प्रदर्शन करते हैं, वो अभिमान हो गया। ओके। तो छोटा आदमी है वो तो अभिमान क्या करेगा? ऐसा कुछ है तो अभिमान करेगा। बराबर। अभिमान कब आता है? जब Correct, है correct. तो अभिमान है। Yeah. इफ यू समथिंग देन यू Yeah. कैन हैव दैट अभिमान। कुछ है ही नहीं तो Yeah, अभिमान मुझे क्या जस्ट क्वेश्चन, मुझे जस्ट क्वेश्चन इसलिए हो गया था कि उसमें पहले लिखा था कि भाई श्रीमंतोने तो ईगो होतो જ નથી, એટલે મને તકલીફ થઈ જાય કે આ हाँ, એટલે શ્રીમંતોને આ ઈગો તો रेफरेंस હોતો ને, એમને तो ये વધારે रेफरेंस હોય में એમ बात है। હતું। उनका Yeah, ईगो correct, से आगे correct. का है। Okay, ईगो another होगा नहीं, ईगो question. से आगे का है। हाँ, असो भाई समझा? બીજો ईगो क्वेश्चन से છે। आगे का है। ईगो Yes, प्लस ईगो आगे बढ़ गया तो अभिमान हो गया। राइट। ओके, दूसरा चलो क्वेश्चन है आगे उसी बढ़ते में आगे। हाँ बोलो। वो है फ्रॉम द क्लिप। કાળમાં શોધવાય મુશ્કેલ, આ કાળમાં એવા લોભિયા છે જ નહીં। લોભિયા તો ત્રીજા ને ચોથા આરામાં હતા, બહુ જબરજસ્ત લોભિયા। આ કાળમાં તો નથી માનનું ઠેકાણું ને નથી લોભનું ઠેકાણું। હવે આ કાળમાં આ લોભિયા નથી કે નથી માનનું ઠેકાણું, મારે એ જેવું જાણવું છે કે કહે છે કે સતયુગમાં અને દ્વાપર યુગમાં હતા કે છે લોભિયા। દ્વાપર અને ત્રેતામાં હવે ત્રેતામાં હતા તો એ કેવી? લોભિયા હતા। બરાબર। એટલે એનો લોભ એટલો બધો હોય ને કે લોભને લઈને બીજું બધું બાજુ મૂકી દે। બરાબર, સમજે? લોભને લઈને એટલે અત્યારે કેવું હોય કે અત્યારે માન મળતું હોય ને, તો એને માન મળે તો થોડા પૈસા ખર્ચી નાખે। ઓકે, બરાબર। દ્વાપર ને ત્રેતામાં લોભવાળો એટલો ભાગ ભારે હતો કે ગમે એટલું માન મળે ને પણ પેલો પૈસો છોડે નહીં, એટલે જે લોભીઓ હોય। भरत आनंद जी Okay. प्लीज इन हिंदी प्लीज। अरे हाँ 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 बराबर। तो पहले ये द्वापर और त्रेता युग में क्या था कि कसाई ऐसे भारी थे, लोभ इतना भारी था। आजकल लोभ कैसा है कि लोभ है, पैसे इकट्ठे करते हैं, मगर उनको कोई ज्यादा मान दे तो मान मिलता है तो पैसा थोड़ा खर्च कर भी देगा। करेक्ट। मगर उस समय के लोभी ऐसे थे, लोभ वाले जो लोभ वाले थे उनको कितना भी मान दो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगी, कोई असर नहीं होगी। बराबर। सब भारी लोभ था, भारी लोभ। और जो मानी थे उनको दूसरा कुछ भी कितना भी बताओ वो उसको बाहर नहीं आएंगे। करेक्ट। तो अभी इतना मान लोभ इतना भारी नहीं है, तो ऐसा दिखाई देगा लोभिया है मगर दूसरी जगह उनको ऐसा थोड़ा मान मिल गया, तो फिर मान मिलता है तो मान खाने के लिए थोड़ा खर्चा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में 5वें आर्य में जो कसाय है जो मान और लोभ के, वो पहले जितने थे उतने अभी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली माइल्ड हो गए हैं। थोड़े थोड़े माइल्ड हो गए, माइल्ड हो गए, माइल्ड हो गए। ओके, माइल्ड हो गए मगर फिर भी निकले ऐसे नहीं है। ये तो आपको दादा भगवान मिल गए ना, इसलिए ये सब बातें समझ में आती है और ये समझ में आता है कि क्रोध मान माया लोभ है। बराबर। और दूसरा क्या हुआ कि आपको जो अभी आपको जो निकाली क्रोध मान माया लोभ है वो सब कैसा है कि मान खड़ा होगा मगर मान की पीछे नहीं रहेगी। ओके, दैट्स करेक्ट। मान खड़ा होगा
कोई आपको मान देंगे, कोई आपका अच्छा सम्मान करेंगे, तो आपके चेहरे से पता चलेगा बहुत आनंद में है, मान अच्छा लगेगा। मगर बराबर। साथ में मान के लिए जो भीतर बीख रहती है, ये बेगर ऐसी नहीं रहेगी। वो भाग निकल जाता है। करेक्ट, तो किसी को एब्सोल्युटली नहीं करेक्ट। भी निकला तो उनको दिखाई तो देता है एटलीस्ट कि ये मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं बाद में वही जगह ढूंढता हूँ। बराबर। तो ख्याल में मानो कि या 5 बात आपके नदी में 5-7 महात्मा रहते हैं, मगर एक महात्मा ऐसे कि आप जब जाते इतना विनय करते, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको बार बार उनके घर पे जाने का मन होता है। दूसरे लोग जो ऐसा कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं, वहां जाने का मन नहीं होगा। तो ख्याल में आता है कि मान अच्छा लगता है, मान अच्छा लगता है ऐसा। मगर अभी एक ज्ञान मिल गया, हम शुद्धात्मा हो गए, तो जो शुद्धात्मा का टेस्ट किया उनके आनंद का, इसलिए सब जो भिखारीपन है वो अभी निकलता जाता है। करेक्ट। तो मान मिलता है तो आनंद होता है, मगर मान का भिखारीपन निकल जाता है। अशोक भाई, बराबर, बराबर समझ पड़ी। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस जय सच्चिदानंद। शॉर्ट में खत्म करता हूँ। नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई। कंचन भाई, हाँ बोलिए। हाँ भैया। जय सच्चिदानंद। भरत आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गारवता क्या है और ज्ञान में आगे बढ़ने से कैसे बाजारूप बनता है? गारवता का मतलब क्या है? जो दादा भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो भरूच की टेक्सटाइल मिल थी चंद्रकांत भाई की, तो दादा भगवान वहां गए थे, तो बार बार जाते थे। तो मिल में कपड़े को जो कलर सब करते हैं, डाइंग करते हैं, तो डाइंग के बाद जो कलर वाला पानी है तो मिल के पीछे के पार्ट में इकट्ठा होता था, छोटा सा ऐसा तालाब जैसा बन गया था। तो उसमें ऐसा डेली पानी ऐड होता ही रहता था। तो गर्मी के दिनों में भी वो पानी रहता था, पर क्या हो जाता था, वो पानी कलर वाला पानी और कितने दिनों से इकट्ठा हुआ है तो कीचड़ जैसा हो जाता, उसमें स्मेल भी, डर्टी स्मेल भी आती थी, वो सब था। तो दादा का ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था। तो दादा वो ने देखा, गर्मी में गए थे कि वहां वो भैंस, हिंदी में भैंस ही बोलते हैं, भैंसा, तो भैंस आके अंदर पानी में बैठी थी। तो गर्मी बहुत होती है तो पानी में बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं एयर कंडीशन हॉल में बैठी हूँ, या तो एयर कंडीशन तालाब में, ऐसा ठंडे तालाब में हूँ। तो फिर शाम का समय हुआ तो उनका मालिक उनको बुलाने के लिए आया, मगर वो भैंस को तो अंदर पानी में बैठी थी, पानी में वो पानी गंदा पानी था, दुर्गंध आती थी, पानी के नीचे कीचड़ था, कोई जाके उधर खड़ा भी नहीं रहेगा नजदीक में, तालाब के नजदीक में। मगर वो भैंस को बाहर जो गर्मी थी उनकी वजह से क्या लगता था कि तालाब के पानी में बहुत सुख है। तो उनका मालिक जब उनको बुलाने के लिए आता है तो बाहर निकलती नहीं है। और फिर दूध दोहने का टाइम हो जाता है तो फिर क्या करेगा, वो फ्रेश ऐसा ग्रीन ग्रास लेके आता है, उनको बताता है ले 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 कर, ऐसा करता है। तो भैंस भी क्या करती है, ऐसा मुंह करके देखती है, ये अच्छा है, लेने घास खाने जैसा है,
फिर वापस वो पानी की ठंडक लगती है, कीचड़ की ठंडक लगती है, फिर वापस ऐसा करके पानी में बैठ जाती है। तो दादा ने देखा, तो दादा ने बताया कि ये गारवता जो बोलते हैं, ये गारवता है कि आत्मा का इतना सारा सुख पड़ा है, फिर भी मनुष्य को सुख कहाँ लगता है? गारव में कीचड़। तो क्या संसार के कीचड़ में जो जो कुछ सुख है ही नहीं, उसमें सुख लगता है, और वो सुख ज्यादा पाने की इच्छा होती है, और उसमें से वो बाहर ही नहीं आता है। तो ये गारवता का दादा ने लाइव एग्जांपल दिया। तो हम लोग भी कैसे थे कि हमें संसार के सुख ही अच्छे लगते थे, कि किसी ने मान दिया, पैसा कमाया, अच्छा मकान लिया, अच्छी जॉब मिल गई, बिजनेस अच्छा चल रहा है। आपको सिंपल बताऊं कि मानो आप में से कोई जॉब कर रहा है और उसने अच्छा काम किया, तो नेक्स्ट ईयर उनको प्रमोशन दे दिया और उनका सैलरी भी डबल हो गया, तो उनको कितना आनंद होगा? बहुत आनंद होगा। आनंद होगा ना। अभी यहाँ दादा भगवान ने बताया कि जो जागृत है उनको क्या दिखाई देता है कि मुझे ज्यादा अभी डबल पगार मिलेगा, डबल सैलरी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार के कीचड़ में, संसार की गारवता में मैं ज्यादा डूब गया। राइट। ख्याल में? तो जो जागृत नहीं उनको आनंद होगा, और जो जागृत है उनको ज्यादा लक्ष्मी आएगी तो भी बोझ लगेगा। बराबर। ऐसे लक्ष्मी की बात है, सब चीज की बात है। उनको जरूरत से कुछ ज्यादा आया तो उनको बहुत बड़ा बोझ लगेगा। वो 2 रूम के मकान में रहता है, और फिर बाद में संजोग आए तो बड़ा मकान ले लिया 4 बेडरूम का, तो लेता है, फिर उनको जो जागृत है तो उनको बहुत बोझ लगता है, अरे ये सब इतना बड़ा कहाँ संभालने का। तो ये है कि ये संसार की गारवता, इस संसार का कीचड़। तो कीचड़ में हम फंसे हुए हैं, मगर ये कीचड़ ऐसा है कि उनको लगता ही नहीं कि मैं फंसा हुआ हूं। जो लगना चाहिए मैं फंसा हुआ हूं, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं फंसा हुआ हूं। तो दादा बाबा ने क्या बताया कि जब उनको लगे कि मैं फंसा हुआ हूं, तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। बराबर। जिनको लगता ही नहीं कि मैं फंसा हुआ हूं, वो तो उसमें आनंद करेगा और ज्यादा फंसेगा। बराबर। तो बोलते हैं गारवता। तो एक गारवता, ये श्रीमद राजचंद्र ने लिखा था। गर्व नहीं, तो ज्ञानी पुरुष कैसे होते कि जिनको गर्व नहीं, गारवता नहीं, ऐसा करके बताया। निश्चिंत जिनको आत्मा का उपयोग है। तो गर्व मीन्स कोई भी चीज कुछ भी हुआ, उनको ऐसा नहीं होगा कि मैंने किया, मैं था तो हो गया। तो उदय कर्म के अधीन जो हो रहा है, उसके वो कर्ता होकर उसको चखते नहीं है। तो अभी भी संसार की कई चीजों में गारवता जैसा लगता है, जैसे टीवी देखने का है, सीरियल देखने का है, कपड़े पहनने का, खाने का। तो उसमें ज्ञान से कैसे आगे बढ़ना? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया कि ये समझ में आ गया एक गारवता और संसार की गारवता मीन्स सही में वो सुख है ही नहीं, दुर्गंध है, फंसे हुए है, फिर भी अच्छा लगता है। हाँ। बराबर। अभी आपने आगे बताया कि अभी मानो कि अच्छे कपड़े पहनने का है, कि टीवी में कुछ देखने का है, सीरियल देखने का है, तो उसमें भी आनंद आता है, तो गारवता तो हुई नहीं। तो बराबर है, तो बराबर है। अभी कपड़े में तो क्या है, कपड़े में तो अभिमान आता है, गारवता नहीं बोलते, अभिमान बोलते। क्योंकि मैं हूं
और मैंने अच्छे कपड़े पहने, तो उनको लगता है मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने। शादी में जाते हैं तो कहीं कितना होता है, अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं, और कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं तो क्या होगा, सामने से बोलना पड़ेगा ये साड़ी है ना, मैं इंडिया गई थी तभी ली थी और बहुत महंगी थी, मैं तो लेने वाली नहीं थी। फिर बाहर मेरे हस्बैंड ने बताया नहीं नहीं आप ले लो, तो मैंने ले ली। तो ऐसा सब बताना पड़ता है ना, तो सामने वाले को पता चले कि मैं कुछ हूँ, तो अभिमान में जाते हैं, अभिमान। तो गारवता क्या है, वो सुख भोगने में इतना वो उनको लुलुपता हो जाती है, उनको ख्याल में ही नहीं आता कि ये सुख नहीं है, सही में तो दुख है, वो ख्याल में ही नहीं आता है। तो उसी वक्त हमको ऐसा रखना चाहिए कि ये जो टीवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है या खाने खा रहा है, तो उसमें वो मैं नहीं हूँ, ऐसा कर ऐसी। हाँ, यही बराबर, एकदम सही बात है। तो अभी क्या रखना चाहिए कि मानो कि टीवी पे कोई सीरियल आ रही है, टीवी पे कोई सीरियल आ रही है, तो अभी तो आप ज्ञानी हो गए, तो आप क्या बोलेंगे कंचन भाई को कि भाई ये तो मेरा भरा हुआ माल है। लाइटली बताओ, लाइटली बताओ। राइट राइट राइट। क्योंकि ऐसा बोला, आप खुद बोलेंगे कि भरा हुआ माल है, तो वो गारवता बढ़ गई, आप ज्यादा उसमें फंस गए। तो दादाजी का क्या कहने का था कि अभी ये सुख, शुद्धात्मा का सुख चखने के बाद आप ऐसा पीछे का माल लेके आए, निकाली माल, तो टीवी के सामने बैठने का होगा, मगर भीतर रस नहीं आएगा। और भीतर रस आता है तो फिर बहुत शक्ति मांगना, प्रतिक्रमण भी करना और एनालिसिस भी करना। बराबर, समझना इस तरह से। बहुत सर। और कभी कभी तो महात्मा क्या बोल देते हैं कि हम पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये तो क्या हुआ है, तो ये तो भरा हुआ माल है, माल का निकाल तो करना पड़ेगा ना। तो वो एक्सटेंशन मिल गया। जो जो इंटरेस्ट के साथ करते हैं, ये गारवता वाला पार्ट वो इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, और आप मानेंगे कि मैं निकाल कर रहा हूं, सही है? नहीं, सही नहीं है। बराबर। इसके यहाँ जागृत होने की जरूरत है। तो जो जागृत है उनको क्या होगा कि सीरियल देखेगा भी, और भीतर तो बहुत टर्मोइल चलेगा, पिंचिंग भी रहेगा, अरे कितना मेरा टाइम बिगड़ता है, अंदर बहुत पिंचिंग रहेगा, सुख नहीं आएगा। यहाँ तो एक और सुख लेते हैं और दूसरी ओर बोलते हैं ये तो मेरा निकाली माल है। और इतना ही नहीं, दूसरों का भी रक्षण करने के लिए चले जाते हैं। जो मानो एक कंचन भाई टीवी के सामने बैठ जाते हैं, और कोई घर पे दूसरे महात्मा है, तो आप क्या बोले, भाई कंचन भाई का तो ये टीवी देखने का बहुत शौक है, उनका भरा हुआ माल ही ऐसा है। क्योंकि ऐसा बोलने की जरूरत है, वो अंदर आपको भीतर अंदर समझने का है। बराबर। भीतर आप समझेंगे कि दूसरे का भरा हुआ माल है, निकाली माल है, तो आप उनको कलता नहीं देखेंगे, निर्दोष देखेंगे। हाँ, मगर जब मुंह से उनका प्रोटेक्शन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो चीज की अनुमोदना कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और अनुमोदना का तो फायदा बहुत बड़ा हो जाता है। भगवान महावीर ने बताया है कि आप में शक्ति नहीं कर पाते तो अनुमोदना करना। तो गलत में अनुमोदना किया तो उनका भी बहुत बड़ा फल आएगा, और अच्छे में अनुमोदना किया तो उनका भी बहुत बड़ा फल आएगा। तो हम तो अभी दादा भगवान के ज्ञानी महात्मा है, तो इतनी ऊंची पद पे, इतनी ऊंची जगह पे आ गए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गई। ख्याल में? हाँ। तो जाने अनजाने में जो प्रोटेक्शन कर लेते हैं, जो गलत है वो गलत है, गलत तो हम सही बोल देते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो आपने बताया नहीं गारवता में कि मानो कि
आपका कुछ भी ऐसा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मीन्स तो भरा हुआ माल ऐसा है कि मोक्ष मार्ग में आगे जाने में हेल्पिंग नहीं है, राइट। तो वहां हम ऐसा नहीं बोल सकते। समाज व्यवहार में लोग कैसे बोलेंगे? किसी को पूछे भाई आप बिजनेस क्यों करते हैं? अरे ये पापी पेट के लिए तो कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। बाहर ऐसा बोलेंगे, और हमें तो ख्याल में होना चाहिए कि अभी एक ज्ञान मिला तो ठीक है बिजनेस करते हैं, ये संजोग ऐसे है, फाइल का निकाल करते हैं, मगर भीतर पिंचिंग रहता है कि मुझे ऐसे संजोग क्यों आते हैं और दादा वो लोग क्यों नहीं आए। दादा और बिजनेस पे थे फिर भी मुक्त थे, उनका सुबह से शाम तक सत्संग चलता था, सुबह 6:30 से रात को 11:30 बजे तक बिजनेस में थे फिर भी। और मुझे ऐसा संजोग क्यों नहीं आता, ऐसा कभी सोचा कि मैं कैसा कैसा अंतराय डाल के आया हूं? तो ऐसा इस तरह से गारवता से बाहर आते, जागृत हो गए तो गारवता से बाहर आएंगे, और जाने अनजाने में खुद के माल के लिए या दूसरों के माल का रक्षण किया, प्रोटेक्शन किया, तो अनंत अवतार के लिए वो नया मान लेते और गारवता में गरक जाते हैं। जय चलो आगे सच्चिदानंद। बढ़ते। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती, डॉक्टर भारती अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। डॉक्टर भारती नाइजीरिया में रिमोट प्लेस पे है, भारतीबेन चेंज योर लोकेशन। उनका सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम होगा। भारतीबेन चेंज योर लोकेशन। नहीं, उनको टाइप करके बोल दो कि you write your question. I want to know how can you हाँ उसका क्वेश्चन है भरत आनंद जी। हाँ I should change the location, let me off. Okay, it's better. हाँ Pardon? Yes, हाँ yes, बोलिए। you are audible. हाँ, अभी आवाज आती है, बोलिए। Okay, Jai Sachidanand Bharat Bhai, can you hear me? हाँ, yes, I am hearing you. Okay. ये पूछने का था, मान means respect, अपमान means insult. हाँ। So what is the attitude we should have for man, and what is the attitude we should have towards apman? What is the right attitude we should have towards this, and how to overcome that? डॉक्टर भारती कैसा है कि आपको मान मिलता है, आपको लोग मान देते हैं, मान मिलता है, तो मान एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मान के लिए भीतर वो भीख खड़ी होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। हमारे भीतर मान के लिए भूख खड़ी होती है, वो नहीं होना चाहिए। और अपमान के साथ कैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि कोई आपका अपमान करे तो आपको जागृति में होना चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूं, मेरा अपमान नहीं किया है। और अपमान करने वाला तो उसने भी मेरा अपमान किया तो नहीं, वो भी शुद्धात्मा है, और जो बाहर की जो फाइल है उनकी भी अपमान करने की शक्ति नहीं है। तो ये व्यवस्थित के अधीन उसने मेरा अपमान किया, या तो मेरे पिछले जो ऐसे भारी कर्म थे वो मेरे भारी कर्म में से मुक्त करने के लिए उनको निमित्त बनकर मेरा अपमान करना पड़ता है। That means he is instrumental in relieving me from my past heavy कर्म। ऐसा एटीट्यूड रखने का, एटीट्यूड नहीं, ऐसी समझ ही रखने का। तो आपको ऐसा ध्यान में रहेगा कि अरे ऐसा है, तो कोई आपका अपमान करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और सब आपको मान तो देंगे, यू आर डॉक्टर, यू आर सर्विंग, आप सबकी सेवा भी करते हैं, तो आपको सब जगह मान तो मिलेगा।
आपको कितना बड़ा अवार्ड मिला था हांगकांग में, तो ये वो सब तो मिलेगा, मगर भीतर मान के लिए भूख खड़ी नहीं होनी चाहिए। इतना हो गया तो बहुत हो गया। तो भरत भाई, we have to do प्रतिक्रमण for अपमान कोई करा तो उनके लिए। अरे वो प्रतिक्रमण की बात छोड़ो, अभी आप इतना एक रखो ना कि अपमान करने वाला इंस्ट्रूमेंटल है, वो करता नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो मुझे मेरे पिछले बारी कर्म से मुक्त कर रहा है। तो ये जो समझ फिट की, पहले गलत समझ की वजह से आपको, ये मिथ्या समझ की वजह से आपको कोई अपमान करता था, तभी आपको बहुत दुख होता था, वो इंसल्ट आपको चुभ जाता था। और अभी आपकी वो समझ चेंज हो गई, तो वो समझ चेंज हो गई, वो क्या हुआ, वो बहुत बड़ा प्रतिक्रमण हो गया। अच्छा। हाँ। Bharat bhai, I want to ask you, from the path, the explanation you gave, वो snake है, snake that bit Mahavir Swami, it went into moksha, is it? ना मोक्ष में गया वो, मोक्ष में गया नहीं, ऐसा मोक्ष में नहीं गया होगा, देवगति में गया होगा, पर बाद में दो तीन जन्म के बाद वो चला जाता है मोक्ष में। अच्छा अच्छा। Not from the same snake yoni. After 1-2 birth, he can attain moksha. That is, it has to take a human birth. Actually वो snake था ने, वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधु था, तपस्वी था, तपस्वी। तो ऐसा वो डेवलप तो था, मगर ये क्रोध बहुत भारी लेके आया था, तो उसकी वजह से ये क्रोध और द्वेष, उसकी वजह से ऐसा आया था भगवान महावीर के पास। तो भगवान महावीर तो तीर्थंकर भगवान थे, तो तीर्थंकर भगवान के प्रति कोई द्वेष भी रखता है या कोई राग भी रखता है, मगर तीर्थंकर भगवान दोनों के प्रति राग और द्वेष से रहित रहते हैं। इसलिए उनको इतनी पॉजिटिव इफेक्ट होती है कि उनको अपनी खुद की गलती, खुद का द्वेष, खुद का क्रोध दिखाई देता है, और फिर वो मोक्ष लाभ में कितने स्टेप ऊपर चढ़ जाते हैं। That means he has to still take a human birth. Definitely. Before he can go to moksha. हाँ, आप बराबर है, लेना पड़ेगा। Okay, okay, Bharat bhai, many questions will be there. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Ashok bhai, Bharatanand ji, we have 3 minutes. ओ, कोई बात नहीं। अशोक भाई, अनम्यूट, बोलिए। जय सच्चिदानंद भाई साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भरत भाई, अभी आपने बताया कि कोई हमारा अपमान करता है तो वो हमारे ही कर्म से हमको मुक्त कर रहा है, लेकिन फाइल नंबर 1 को क्या होता है कि वो अगर अकेले में करे ना, तब तो वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन वो 4 आदमियों के बीच में ऐसा कुछ कर देता है ना, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और कई दिनों तक डिस्टर्ब होता है। बराबर है, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि क्या है कि अकेले में करे तो किसी ने देखा नहीं है जी, तो आपको इतना चुभेगा नहीं जी, मगर 4 आदमी के सामने करेगा, 4 आदमी में आपकी एक इज्जत है, आपका मान है, सबको आपके लिए मान है, तो हमको जवाब भी देना पड़ सकता है। आपको क्या लगेगा कि ये सबके बीच में ऐसा मेरा अपमान कर दिया तो दूसरे लोगों को भी अभी मेरा मान नहीं रहेगा, मेरी इज्जत नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आप उस समय आपको वो जागृति नहीं रहती कि मैं शुद्ध आत्मा, आप क्या हो जाते हैं, मैं अशोक भाई हो जाते हैं, आप अशोक जी हो जाते हैं। बराबर है। तो क्या हुआ कि आपको जो शुद्धात्मा की गद्दी पे रहने का था, शुद्धात्मा की गद्दी पे बैठे रहने का था, उसकी जगह आप उससे उतर जाते हैं, अशोक भाई की सीट पे बैठ जाते हैं जी।
तो अभी तो वो क्या हुआ, वो अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? यस। आप अपनी सीट छोड़ के दूसरे की सीट पर बैठ गए, वो अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यस। आप अपनी शुद्धात्मा की बाउंड्री छोड़कर अशोक जी की बाउंड्री में घुस गए, तो वो अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? तो हमें वहां उसका जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि वो जो अतिक्रमण हुआ, सबसे पहले उनका प्रतिरोध करना चाहिए। जी सर। तो प्रतिरोध कैसे बोल के करने का है? तो नहीं, वापिस आप उससे अपमान किया, ये अशोक जी को पूरी असर हो रही है, तो उस समय आपको पहले शुद्धात्मा हो जाए। नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अशोक जी से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ। मेरा अपमान नहीं किया। अपमान किसका किया? अगर अशोक जी आपका किया है, पर आपका किया, पर मैं आपके साथ में हूँ ना, आप क्यों डरते हैं? जी। ये दूसरे लोगों के बीच में किया, तो जो दूसरे लोग हैं वो तो आपको जानते ही कहाँ है? जी। आप शुद्धात्मा आपको जानते हैं? जी, नहीं आप जो है वो आपको जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है। तो ऐसे थोड़ी सी बात करेंगे ना, तो अंदर शक्ति आ जाएगी, अपने गद्दी पे आ जाएंगे। और अपनी गद्दी पे आ गए तो प्रतिक्रमण भी हो गया और शुद्ध उपयोग भी वापिस आ जाता है। जी जी। और ये जो बारिश संजोग है वो भी टल जाता है। जी। और इतना ही नहीं, ऐसे संजोग में जगत के सारे लोग बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो जगत के लोग जहाँ लॉस करते हैं, वहां आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जी। तो ऐसा ध्यान में रखने का कि जब कोई आपका अपमान करता है, अकेले में अपमान करता है, उसके चार आदमी के बीच में अपमान करता है, तभी कुदरत आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करने के लिए एक तक देती है, अपॉर्चुनिटी। ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। समझ में? ऐसा रखो, ऐसा रखेंगे ना तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जी सर। फिर आप सोचेंगे कि मैं वो आदमी का प्रतिरोध करूं, मैं उनका प्रतिरोध करूं, मैंने लास्ट जन्म में उनका क्या बिगाड़ा होगा। पर ये बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करो, जी। फिर वो तो एक ही प्रतिक्रमण में हो जाएगा। एक और है भरत भाई, पूछ सकता हूँ मैं? आज से रिलेटेड नहीं है वो। जैसे जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रतिक्रमण नहीं है, और जहाँ प्रतिक्रमण है वहाँ झगड़ा नहीं है। हाँ, वो तो क्या कहना चाहते हैं कि झगड़ा हुआ तो पहले प्रतिक्रमण नहीं किया था, इसलिए अभी झगड़ा हुआ ना। जी। पहले प्रतिक्रमण करके सॉल्यूशन ला दिया होता जी, तो झगड़ा नहीं होता था। जी जी जी। ऐसा सिंपल ले लो, सिंपल। ये दादा बोली कोई भी बात डिफिकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जी जी। और हमें सिंपल बात को सिंपल ही रखना है। जी। जय सच्चिदानंद। चलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपका आशीर्वाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरतानंद जी, હવે આપણે टाइम हो गया है एक्सपीरियंस का, तो हम एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में आपका छोटा सुन के एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में त्रिमंत्र बुलाए। दीपकानंद जी, छोटा या सच्चिदानंद। आज जो हमारे बीच अनुभव कहने आ रहे हैं, वे हमारे बीच यानी सभी आप तो पुत्रों के साथ बड़े कम उम्र से जुड़े हुए हैं। सभी हमारी काफी शिविर को उन्होंने अटेंड की है। तो चलो देखते हैं, फिर बड़े हो गए तो थोड़ा परिचय कम हुआ था, लेकिन फिर वो सत्संग में आते थे तो सुनते हैं कि दादा भगवान को उन्होंने कैसे अपने जीवन में अपनाया है, उपयोग किया है, और वे अच्छा गा भी लेते हैं। जय सच्चिदानंद। विशाल भाई, ओके ओके, गो अहेड। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। आवाज आयो साहब? यस, क्लियर एंड लाउड। सर्वे आपता पुत्रों ने जय सच्चिदानंद, सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। दादा भगवान नु जे अक्रम विज्ञान छे, तेनो जे
મારો પોતાનો અનુભવ છે તે શરૂઆતથી જ બોલો બોલો that's fine go ahead cut બોલો you got disconnected સાહેબ બોલું હા બોલો 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 સંભળાય છે ઓકે હા યસ યસ બોલો ઓકે દાદા ભગવાન માટે અક્રમ વિજ્ઞાનનો જે મારો પોતાનો અનુભવ છે તેમાં હું મારા જીવનમાં બહુ પુણ્યશાળી રહ્યો છું કારણ કે સ્ટાર્ટિંગ થી જ જે હું મારી માતાના ગર્ભમાં હતો ત્યારે જ મને દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું હતું જ્યારે હું નાનો હતો મારી માતાજીના ગર્ભમાં હતો ત્યારે મારા માતાને દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન એમની પાસેથી મળ્યું હતું એટલે મને મારી માતાના ગર્ભથી જ દાદા ભગવાનનો પરોક્ષ રીતે કહેવાય જ્ઞાન મળેલું છે અને ખૂબ સારો અત્યારે અનુભવ છે એ પછી જેમ જેમ હું મારી જીવનમાં આગળ વધતો ગયો તેમ અમને દાદા ભગવાનના સત્સંગમાં પણ લાભ મળ્યો છે અમારા મધર ફાધર બધા દાદા ભગવાનના સત્સંગમાં જતા હતા જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અમે બધા પાછળ રમતા હોઈએ પણ દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ અને દાદા ભગવાનનું આમ મુખારવિંદ ને બધું વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય અને આશીર્વાદ બી દાદા ભગવાનના રૂબરૂમાં લીધેલા છે અને જેમ જેમ અમારું જીવન આગળ વધતું ગયું અમારા જીવનમાં અમારા મોટા થતા ગયા તેમ અમને સત્સંગમાં જે શિબિર ચાલુ થઈ જે નવયુવાનોની જે અત્યારે શિબિર થાય છે તેવી રીતે શિબિર જ્યારે સ્ટાર્ટિંગ થઈ ત્યારે દરેક શિબિરમાં અમે ભાગ લીધો હતો અને શિબિરમાં કેવું હોય કે ભાઈ અમે સ્ટાર્ટિંગમાં તો બધા છોકર મતમાં હોય બધા નાના હોઈએ એટલે બધા મસ્તી કરવા જ જતા હોઈએ પણ મસ્તીમાં દરેક આપતપુત્રોના જે સંપર્કમાં આવ્યા દરેક આપતપુત્રોને જે લાભ મળ્યો અમને તેમાં અમારા જીવનમાં અત્યારે એવું લાગે છે કે ભાઈ એ ટાઈમે અમે મસ્તી કરતા હતા ગણકારતા નહોતા કે ભાઈ એ સત્સંગમાં જઈએ એટલે મસ્તી કરીએ એવું બધું કરીએ પણ અત્યારે અમને એવું અનુભવમાં આવે છે કે ભાઈ એ જે આપતપુત્રોના સંપર્કમાં રહે એમની જે વાતો સાંભળી દાદા ભગવાનની વાતો સાંભળી એમાં અત્યારે અમને બધું અમારા અત્યારના વ્યવહારિક જીવનમાં બહુ બધું કામમાં આવે છે અને એ પછી સત્સંગમાં અમે રેગ્યુલર જતા થયા ભલે અમે સત્સંગમાં જઈએ અને ફરીએ બહાર બેઠા હોઈએ પણ એક ટાઈમે એમ એવું લાગે કે પ્રસાદી માટે જ જઈએ છે સત્સંગમાં પણ દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે ભાઈ અમારા ત્યાં ખાલી પ્રસાદી લઈને જે જશે એનું બી કલ્યાણ થઈ જશે એટલે આ પ્રસાદી જે સત્સંગની લીધેલી છે એ ધીમે ધીમે અત્યારે બહુ સરસ રીતે અનુભવમાં સત્સંગમાં બહુ કામ હેલ્પફુલ થઈ છે એટલે શિબિરમાં બી એમને દરેક આપતપુત્રોનો 1 by 1 પરિચયમાં આવ્યા દરેક આપતપુત્રોનો સત્સંગ મળ્યો અમારે કઈ બી પ્રોબ્લેમ્સ હોય કે ભાઈ બીજા કોઈ બી છોકરાઓ પૂછતા હોય ધારો કે કોઈ પ્રશ્ન પૂછતો હોય તો એમાં અમારા ભાઈ પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ અમને દેખાય અને અમારે એનું સોલ્યુશન આવી જાય અને આપતપુત્રોનો તો બહુ બધો હું આભાર માનું છું કે ભાઈ એમને જે અમને ટ્રેન કર્યા છે જેમ દાદા ભગવાને આપતપુત્રોને ટ્રેન કર્યા એમ અમને દરેક શિબિરાર્થીઓને જે બી શિબિરમાં આવતા હતા અમારા જેવા બધા નવયુવાનો એમને આપતપુત્રોએ બહુ સારી રીતે સંસ્કાર અને ટ્રેન કર્યા છે અને અમારા અત્યારના વ્યવહારિક જીવનમાં અમે કોઈ પણ જગ્યાએ પાછા નથી પડતા અને દરેક જગ્યાએ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન અમને ઓટોમેટિક એપ્લાય થઈ જાય છે એટલે એ બહુ સરસ અનુભવ છે મારો અને બીજો જે ધીમે ધીમે અમે લોકો મોટા થયા જેમ અમારા અમદાવાદના બધા જે છોકરાઓ હતા એનું અમારું બહુ મોટું ગ્રુપ હતું એટલે અમારે દરેક શું છે ગ્રુપમાં હોઈએ એટલે બધા સત્સંગ હોય કીર્તન ભક્તિ હોય એટલે દરેક બધા એકબીજા છોકરાઓ બધા એકબીજાને ફોનો કરીને પછી ત્યાં ભેગા થઈએ કે ભાઈ ચલો આજે તું આવજે એમ કરીને બધા એક ટાઈમે એ રીતે ભેગા થઈએ ભલે પછી સત્સંગમાં થોડીક ટાઈમ બેસીએ પછી બહાર બેઠા વાતો કરતા હોઈએ ગપ્પા મારતા હોઈએ પણ સત્સંગમાં તો જવાનું એક સ્ટાર્ટ થઈ ગયું કે ભાઈ ચલો એક ગ્રુપ બની ગયું છે તો આપણે સત્સંગનો લાભ લઈએ એમ કારણ કે મધર ફાધર બી જતા હોય સત્સંગમાં એટલે આપણે બી જવું પડે પછી અમે અમદાવાદના દરેક સત્સંગમાં અમારા 4-5 છોકરાઓ સાયકલ લઈને જતા હતા પછી અમારા અમદાવાદના જે રેગ્યુલર શિબિરાર્થીઓ છે એમનો દર અઠવાડિયે એક દિવસ એવો રાખ્યો હતો કે ભાઈ અમે દરેક કોઈ બી એક છોકરાને ત્યાં ભેગા થઈને અમે બધા
પદો ગાતા હતા, સત્સંગ કરતા હતા, એ રીતે બધી કન્ટિન્યુટી અમારી જળવાતી હતી. પણ જેમ જેમ આગળ ગયા એમ અમને અત્યારે હાલની તારીખમાં બી કીર્તન ભક્તિનો સારો એવો લાભ મળે છે. અને કીર્તન ભક્તિમાં ભલે આખી રાત આપણે ઉજાગરો કરીએ, કીર્તન ભક્તિનો લાભ લઈએ, પણ કોઈ પણ જાતનો ઉજાગરનો કે થાક એવો લાગે નહીં. આપણે એકદમ ફ્રેશ હોઈએ. દિવસે બીજા દિવસે બી આપણે કઈ બી કામ માટે ક્યાંય બી જવાનું હોય, ભલે સન્ડે હોય, વ્યવહારિક કામમાં કેવી રીતે જવાનું થાય, પણ એમાં બી કીર્તન ભક્તિનો એવો જબરજસ્ત અનુભવ છે કે ભાઈ કોઈ પણ જાતનો તમને થાક ના લાગે. અને કીર્તન ભક્તિ તમે આપણે ધારો કે બેઠા હોઈએ તો એની ઓટોમેટિક તમે ચિત્ત એનું એકદમ ચિત્તમાં આવી જાય અને જાગૃતિ જબરજસ્ત રહે છે કીર્તન ભક્તિ. એ તમારે સત્સંગમાં એક સરસ વસ્તુ કીર્તન ભક્તિ છે. મને જો કે પદો અને કીર્તન ભક્તિ એવું વધારે હોય એટલે અમે બધા ભાઈબંધો બધા બહાર હોઈએ, પછી પદ જયારે યોગેશ આનંદજી કે એમના પદ ચાલુ થાય એટલે અમે લોકો પદમાં જોઈન્ટ થઈ જઈએ. અને ધીરે ધીરે પછી અમારે ઢોલક વગાડવાનું ને એ બધું ઇન્ટરેસ્ટ હતો એટલે એ રીતનું થયું. એટલે એમાં પદમાં ને એમાં મ્યુઝિકમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે. એવી રીતે કીર્તન ભક્તિ હોય તો કીર્તન ભક્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ, આમ સત્સંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ કરો પણ બેસવાનું આમ બહુ મન ઓછું થાય કે ભાઈ આપણે કીર્તન ભક્તિના મ્યુઝિકમાં જેટલો શોખ હોય એટલો એમાં સત્સંગમાં ઓછો. પણ દરેક આપતમિત્રોને આપણે કઈ બી પ્રશ્ન હોય કે કઈ બી આપણે પ્રોબ્લેમ થયા હોય કે કોઈ બી આપતમિત્રોને આપણે સંપર્કમાં આવીએ કે ભાઈ અમારે આ પ્રોબ્લેમ થયો છે, આમ છે તેમ છે, તો દરેકનું એનું સોલ્યુશન મળી જાય આપણને દરેક આપતમિત્રો પાસેથી. એટલે આપતમિત્રોનો તો બહુ મોટો અમને લાભ મળ્યો છે જે અમારા જીવનમાં અત્યારે બહુ સારી રીતે અમારા વ્યવહારમાં કામમાં આવે છે. અને દાદા ભગવાનની જે અનુભવ વાણી છે, જે અમે સાંભળેલી છે, જે બી પુસ્તકમાં વાંચેલી છે, તે બી અમને અત્યારે ખૂબ સારી રીતે એપ્લાય થાય છે અમારા વ્યવહારિક જીવનમાં. અને સત્સંગમાં બીજું જે અમારું જે ગ્રુપ છે એ ગ્રુપમાં અમે સ્ટાર્ટિંગમાં કીર્તન ભક્તિમાં અમે બહુ ઓછા જતા હતા. અને અમારા ગ્રુપ જે 4-5 જણનું અમે બનાવેલું છે જેમાં અમુક આપતમિત્રો બી છે. એમાં અમે બહારગામ બી એમનો ફોન આવે કે ભાઈ આજે આપણે આ જગ્યાએ જવાનું છે, આ જગ્યાએ જવાનું છે, એ જગ્યાએ આપણે કીર્તન ભક્તિનો બી સારો એવો લાભ મળે છે અમને. એટલે કીર્તન ભક્તિ અને કોઈનો બી ફોન આવે, આમ આપણે ઘરે બેઠા હોઈએ આપણને આમ એવું લાગે કે ભાઈ ઇન્ટરેસ્ટ આજે ભાઈ કીર્તન ભક્તિ છે તો આમ અમુક ટાઈમ એવું લાગે ભાઈ કોકનો ફોન આવશે, કોકનો તો જઈશું, નહીં તો નહીં જઈએ એમ. એટલે અંદરથી એવું થાય. પણ એટલી વારમાં હોય કે ભાઈ મારે જવું છે તો કોકનો ફોન આવી જાય. આપણે બહારગામ બી જવું હોય, ભલે ગાડીનું કે કોઈ બી રીતનું એરેન્જમેન્ટ ના હોય તો આ એ ગમે તેમ કરીને એરેન્જ થઈ જાય કે કોકની ગાડી લઈને બી આપણે 4-5 જણા જે ફોન આવતા હોય એમનો અચાનક ફોન આવી જાય કે ભાઈ ચાલ ભાઈ વિશાલ આજે આપણે આ જગ્યાએ કીર્તન ભક્તિ જવાનું છે. અને અંદરથી બી એવું જબરજસ્ત હોય કે ભાઈ એમનો ફોન આવે ને આપણી હા પડી જાય. એટલે એ રીતે કીર્તન ભક્તિનો બી અત્યારે હાલની તારીખમાં બહુ સારો એવો લાભ મળે છે. અને બીજું તો સાહેબ બહુ યાદ નથી આવતું, પણ દાદા ભગવાનનું જે અત્યારે અમને અમારા વ્યવહારિક જીવનમાં જે હેલ્પફુલ થઈ રહ્યું છે તે બહુ સરસ છે. અને એનાથી કીર્તન ભક્તિથી જે જાગૃતિ વધે છે, તેનાથી આપણે કઈ બી વ્યવહારિક જીવનમાં કઈ બી જગ્યાએ અટકાઈ ગયા હોય તો આપણે ખાલી દાદા ભગવાનને બસ યાદ કરીએ તો આપણું કામ ગમે તેવું હોય તો આપણું કામ થઈ જાય. આપણે ધારો કે ઘરેથી નીકળ્યા હોય કે ભાઈ દાદા ભગવાન હું અત્યારે આ જગ્યાએ જઉં છું અને મારું આ કામ છે એ મારું કામ સારી રીતે પતી જાય એવી આપ મારા પર કૃપા કરશો. બસ આ ખાલી એટલું કઈ નીકળીએ તો આપણને કામ આપણું ક્યાં પતી ગયું આપણને પોતાને ખબર ના હોય. ગમે તેવા અઘરા કામ હોય તો એ સરળતાથી થઈ જાય. એટલો બધો બહુ સરસ મને અનુભવ છે. પણ અત્યારે વાણીમાં એટલો બધો આવતો નથી, પણ અંદરથી જબરજસ્ત અનુભવ થયો. વિશાલભાઈ કશું કેવું છે વધુ? હાજી સાહેબ, હજી કશું કેવું છે? બહુ નીકળતું નથી એવું છે, કેવું તો બહુ છે. हाँ ओके ओके फाइन फाइन नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ऐसी बात है कि हमने ये सुना कि ये बचपन से आपतमित्रों से जुड़े हुए थे, उनके संपर्क में रहे, शिविर बहुत सारी अटेंड की और उनका एक अच्छा था, सत्संग में आते थे भोजन के लिए और कविराज ने गाया है कि भोजन में सत्संग होता है
ये बड़ी गुप्तता है, दादा भगवान ने दी है। और कुछ बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि शुरुआत में हम दादा भगवान के पास सत्संग में नाश्ते के टाइम पर ही जाते थे, और वैसे करते 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 अब फुल टाइम जुड़ गए हैं। तो आप अगर भोजन के लिए आए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। और महात्माओं के लिए जो भोजन बनता है वो तो दादा भगवान ने बताया कि महात्मा तो प्रत्यक्ष देव है इस भूमि पर, वरना देव होते नहीं है। तो ये बात है। और आपको कीर्तन भक्ति और पद के लिए बड़ा आकर्षण है, और आप उसका बार बार उपयोग करते हो। और आपने बताया कि आपने अपना ग्रुप बना के रखा है कि जब जब कीर्तन भक्ति होती है, फोन आ जाता है तो आप बिना बेझिझक पहुंच ही जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। और कभी कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान पूछ कर ले लेते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि सभी लोग इस तरह से सत्संग में आए और दादा भगवान का लाभ ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति है। किसी को कीर्तन भक्ति अच्छी लगती है, पद अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बड़ा गहरा परिचय करके रखा है, जोड़ के रखा है, अपने आप को कनेक्ट करके रखा है, और आप साथ है। तो दादा भगवान ने बताया जो सत्संग से जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, फिर तो कोई प्रश्न नहीं है। और जहाँ कोई भी प्रश्न होता है तो आप समाधान ले लेते हैं। वेरी गुड। सो फार अवे बट सो क्लोज, ऐसा है। थैंक यू विशाल भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद विशाल भाई, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस। अब हम आनंद भरत आनंद जी का सुनेगा। भरत भाई आपके पास टाइम है? सॉरी आई शेड शॉर्ट, पर अभी टाइम है अपने पास। हाँ हाँ, तो मैं 44 वस्तु एक्सपीरियंस 2 मिनट में क्या कह दो। क्या बोला? नहीं, भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस, आपको ढेर सारा एक्सपीरियंस है ना, दादा भगवान के साथ है, वो तो क्या पल पल एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि दादा से क्या क्या कुछ मिलता है। एक बात करूं तुमने, हिंदी में बोलिए। हाँ हिंदी में। उस समय दादाजी के साथ रहने का संजोग था, और मेरा दादाजी के साथ मन के बारे में सत्संग बहुत हुआ था, और दादाजी मुझे बताते थे कुछ भी, तो ऐसे दादाजी ने बताया तो बराबर ऐसा स्वीकार हो जाता था। मगर जहां तक मुझे समझ में नहीं आता था वहां तक मैं आर्ग्यूमेंट करता ही रहता। तो एक बार दादाजी ने बोला कि तेरी सारी लॉ बुक गलत है, तूने अपनी खुद की लॉ बुक बना के रखी है, पर सारी लॉ बुक गलत है, जाके समुद्र में डाल के आ, कुछ भी काम का नहीं है। तो दादा ने ऐसा बोला तो एक झटका लग जाता है। फिर भी मैंने शांति से दादा को बताया, दादा कुछ 5-10% तो कुछ सही होगा ना। दादा ने बताया एक लॉ भी सही नहीं है। तो उस समय समझ में नहीं आता, मैं इतना था दादा ने बताया तो सही है। मगर अभी आज दादा को मिले, आज 44 इयर्स हो गए, अभी दादा की वो बात एकदम सही है ऐसा अभी समझ में आता है। जय सच्चिदानंद। भरतानंद जी, ये आज इतना पवित्र दिन है, तो ये ममता के बारे में क्या कुछ बताया था आपको? वक्ता ममता हाँ ममता के बारे में क्या बताऊं। मैं दादा ने बताया था, मगर मेरे बारे में बताया था। क्या बात करते हैं? क्या था कि दादाजी के साथ 3-4 साल हुआ था, आई थिंक 80 के आसपास की बात है।
तो मेरा ज्ञान से पहले से ही, शुरू से ही वो ममता का माल बहुत कम था, ममता बहुत कम। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ममता नहीं है। तो दादाजी बताते थे कि हमारे में ममता नहीं होती है। ऐसे नए नए लोग सत्संग में आते हैं, दादाजी बात करे, हमारे में अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, वो सब 1958 सब चला गया। और मैं ऐसे देखता रहता था और मुझे समझ में भी नहीं आता कि ममता क्या है। उस समय की बात कर रहा हूँ कि ममता क्या है। मुझे तो क्या है, ममता में से फादर मदर के लिए अटैचमेंट है, उनको ममता बोलते हैं, ऐसा मैं समझता था कि अपने जो रिश्तेदार है या पेरेंट्स है, फैमिली है। तो मुझे पहले से वो अटैचमेंट वाला पार्ट नहीं था। और दूसरा मुझे समझ में नहीं आता। फिर दादाजी ने बताया कि ममता वस्तु के लिए भी होती है और फैमिली में सबके लिए भी होती है, फाइलों के लिए। तो दादा ने ऐसा बताया तो मुझे धीरे धीरे ध्यान में आया कि मुझे वस्तु के लिए भी ममता नहीं है। पर फिर भी इतना ज्यादा ख्याल में नहीं आया था। तो एक दो बार बैठे थे तो दादा ने मेरे सामने देख के बताया कि मुझे समझ में नहीं आता है कि भरत में मुझसे भी कम ममता है। मुझे आश्चर्य होता है। क्या बात करते हैं? तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगता है दादा इसे प्रोत्साहन देने के लिए मुझे बता रहे कि भरत में ममता मुझसे भी कम ममता है। तो मैं तो एकदम सोच में पड़ गया, दादाजी क्या बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता था उस समय। फिर जब दादाजी के पास से 3 बार भाग के चला गया तभी ख्याल में आया कि ममता नहीं है, वो अहंकार। जो दादा जो अहंकार निकालते थे मेरा, तो दादाजी बताते थे कि नाग है, नाग का मुंह पकड़ के उनको ऐसा कचरी पॉइजन काढ़िए ना, कुचल के कुचल दबा के पॉइजन निकालते हैं। ऐसा कि उनका अहंकार निकाला है। क्या बात। तो क्या 3 बार मैं भाग गया था दादाजी के पास से, फिर वापस आना भी पड़ा और अनकंडीशनली वापस आना पड़ा। वेरी गुड। अब देखो कि निमित्त जो भी है, संजोग जो भी है, मगर जो भी संजोग 3 बार इकट्ठा हुआ था, और तीनों संजोग में वो अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगी थी। और फिर भी दादा ने एक शब्द भी नहीं बोला था। और दादा का एक ज्ञान जो भीतर काम करता है, तो मुझे अनकंडीशनली एवरी टाइम वापिस आना पड़ता था। एवरी टाइम वापिस आया हूँ। और दादा ने वापिस आ गया। दादा ने पूछा भी नहीं है कि तू क्यों चला गया था। So good. दादा भगवान भी इतने ही नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मगर ये बात मैं सोचे, अनकंडीशनली मैं एवरी टाइम वापिस आया। और तभी मुझे ख्याल में आया था कि दादा बोलते थे कि तेरे में ममता नहीं है। मुझसे मुझे आश्चर्य होता है कि मुझसे भी ये भरत में ममता कम है। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आता था। और अभी जो संजोग आते हैं तो अनुभव में आता है कि कुछ भी है, कुछ भी संजोग है,
और मुझे बोले भाभी ये नहीं करने का है, तो वो मैंने बंद किया, फिर मुझे कभी याद नहीं आता है। कुछ एक काम मुझे सौंप दिया संघ में से, भाई आपको ये काम करने का है, और 6 महीने के बाद बोले कि अभी आपको नहीं करने का है, तो ओके नहीं करने का, चैप्टर क्लोज। भीतर वो खड़ा नहीं होगा, भैया क्यों काम मेरे पास वापस ले लिया, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ होगा, कैसे क्यों हुआ, चैप्टर क्लोज और आगे बढ़ने। तो अभी धीरे धीरे समझ में आता है कि दादा भगवान जो बोलते थे कि ममता नहीं है, तो ममता का मीनिंग ही समझ में नहीं आता था उस समय। अभी दादा जो कहना चाहते थे, दादा के जो मर्म था ममता का, वो समझ में आता है इतने सालों के बाद, आफ्टर 44 years। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बोला, विशाल आपकी फैमिली के साथ त्रिमंत्र बुलाना। नमो वितरागाय, अनम्यूट करिए विशाल, अनम्यूट करिए। नमो वितरागाय, नहीं हुआ। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।